Assalamu alaikum. I'm Dr. Mariam Bauer. Today's topic is employee selection devices or methods. Basically, these are different methods or ways to choose an employee for a specific or particular position in some organization or institute. These different ways basically are used to evaluate individuals' capabilities, education, experiences, his personality, to be at conclusion if he would be able to perform the related um, responsibilities and duties for a specific job he has applied for. So there are several categories of employee selection methods that involve different kinds of examination, a series of interviews, background research, etc. etc. Hiring teams often use these to identify top candidates. So whenever there is a post and we need someone to hire for that, a list of candidates apply for that. Many. Like you may say, like in an organization, if there is a post for a lecturer, then many uh, eligible candidates will apply for. But as it is a single post, so they have to go through different procedures, different tests or interviews to evaluate the best one that can serve in the best possible way to the organization and could deliver the best knowledge in the best possible way to the students. There are many different around 17 different methods that could be involved, or some of these may be involved as per the requirement of the uh, post. So first of all, there is resume sorting process. Resume is basically a detailed description of one's personality, qualification, experiences, etc. etc. So जब कोई job opportunity आती है and we apply for that, we have to fill some form that contains all of these attributes basically. तो first hand पे तो यहाँ पे sorting हो जाती है. For example, if someone is applying for the job of assistant professor in a university, तो उसका criteria that one must have to be a PhD without any experience. So if there are people who applied just to see maybe they get some chance to be included in, तो वो वहीं पे जो है ना सॉर्ट कर लिया जाता है उनको, बिकॉज बेसिक क्राइटेरिया फ्रॉम द HEC हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इज़ फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इज़ दैट वन शुड बी अ PhD. ठीक है, तो यहाँ से पहली उसकी हो जाती है. फिर उसके साथ दे हैव सम लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस इफ़ दे हैव टॉट समवेयर, इफ़ दे हैव बीन involved in research projects, if they have done some research projects, or evaluated some thesis, etc. etc. और इसके अलावा भी इफ़ दे हैव परफॉर्म्ड एनी काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो हर चीज़ के, या इफ़ दे हैव सम पेपर्स पब्लिश्ड एंड अ लिस्ट ऑफ पब्लिश्ड पेपर्स एंड विच कैटेगरी, उनके जिस जर्नल में उनका पेपर पब्लिश हुआ है वो कौन सी कैटेगरी है, तो इन सब चीज़ों के जो है ना नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है, इन सब चीज़ों का बेसिकली कुछ पॉइंट्स होते हैं. तो जब ये रेज़्यूमेज़ आपके, या ये जो फॉर्म्स जो हम फिल करते हैं किसी भी जॉब एप्लीकेशन के, बेसिकली उसमें ये फर्स्ट हैंड पे ही हमारी जो है ना एक हायरार्की बन जाती है कि दिस पर्सन हैज़ दिस मच पॉइंट, दिस पर्सन हैज़ दिस मच पॉइंट. तो एक हायरार्किकल ऑर्डर में वो एक लिस्ट बना लेते हैं. तो बेसिक जो वेरी फर्स्ट उस लेवल पे स्क्रूटनी होती है वो इस तरह से होती है. फिर सेकेंड नंबर पे आता है जी इंट्रोडक्टरी स्क्रीनिंग. इंट्रोडक्टरी स्क्रीनिंग जो है बेसिकली इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस थ्रू ईमेल भी हो सकते हैं फ्रॉम द कैंडिडेट्स अबाउट देयर क्वालिफिकेशंस, अबाउट देयर प्रोफेशनलिज्म. इसमें कई दफ़ा ये होता है बेसिकली कि इन फ़ोन कॉल्स के थ्रू या इन ईमेल्स के थ्रू डायरेक्टली बेसिकली दे प्रेफर टू हैव अ फ़ोन कॉल. ठीक है, बिकॉज दे वांट टू हैव अ डायरेक्ट नॉलेज. अगर वो उनसे जो भी क्वेश्चन करते हैं वो कितना बिल्कुल अनफेमिलियर किस्म के क्वेश्चन का कितना अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं. ठीक है, तो उसके मुताबिक
उनको फिर शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है। और फिर इस तरह की ये सेकंड नंबर पे अगर आप इसको स्क्रीनिंग के लिए यूजुअली हर जॉब के लिए ये इन्वॉल्व नहीं होता प्रोसीजर में, लेकिन ये एक इसका है पार्ट हो सकता है। जब आपने किसी भी एक स्पेशल किस्म की जॉब के लिए अगर आपको ज़्यादा परफेक्ट किस्म के लोग चाहिए तो फिर आप ऐसी चीज़ों को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। बातचीत से आप उनके अगर फ़ोन कॉल है या आप उनको लाइव उस पे देखना चाह रहे हैं, मतलब इंटरनेट पे आप कोई वीडियो कॉल के थ्रू कर सकते हैं या वॉइस कॉल के थ्रू कर सकते हैं। वीडियो कॉल में आप देखें उनकी बॉडी लैंग्वेज भी आ जाती है। इफ़ दे गिव यू एन इम्प्रेशन ऑफ टेंशन, तो वो चीज़ मैटर कर रही होती है। इफ़ दे रिमेन कॉन्फिडेंट, तो वो उसके एक पॉजिटिव जेस्चर चाहता है रिक्रूटर को। तो और इसके साथ साथ उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी आपको पता चल जाते हैं। तो इट्स अ सेकंड लेवल ऑफ स्क्रूटिनाइजिंग समवन फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। थर्ड नंबर पे आ जाता है असाइनमेंट टेस्ट। मतलब आपकी जो भी फील्ड है उससे रिलेटेड आपको कोई टास्क दे दिया जाता है जो आपकी जॉब से रिलेटेड होगा, जो आपकी कंपनी के काम आएगा लेटर ऑन लाइफ। फॉर एग्जांपल, इफ़ सम ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग टू हायर एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो उसको ये टास्क दे सकते हैं कि आप कंपनी के लिए कोई ऐसे कोड लाइंस प्रिपेयर करें जो कल को उनकी वेबसाइट पे इंक्लूड हो सकें या उसको ज़्यादा बेहतर तौर पे बना सकें। सो ये छोटे से टास्क से वो उसको जज करने की कोशिश करते हैं, एंड हुएवर परफॉर्म्स द बेस्ट उसको फिर स्क्रूटिनाइज किया जाता है या शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाता है जी कॉग्निटिव स्ट्रेंथ टेस्ट। दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को मैयर करते हैं। मतलब हाउ वेल यू कैन परफॉर्म ऑन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, टास्क जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का उसको कितना क्रिटिकली और क्रिएटिवली आप उसको सॉल्व करते हैं। फॉर अ स्पेसिफिक सिचुएशन, हाउ मेनी ऑप्शंस यू हैव टू गेट rid of that problem or to solve that problem. Would you prefer or give options that are of avoidant nature? और यहाँ आप ऐसी ऑप्शंस देते हैं कि आपने सिचुएशन को फेस करना है और आपने उसको कन्फ्रंट करके उसको डील करके उसमें से निकालना है। सो दैट इज़ द पॉजिटिव वन। ठीक है, कि अगर आप उसको कन्फ्रंट करते हैं, उसके साथ आप डील करते हैं और कॉप करके आप उसमें से निकल आते हैं उसको सॉल्व करके। बट इफ़ यू गिव अ काइंड ऑफ escaping or avoiding strategy, so that shows a negative side of yours, that you are not capable of confronting or dealing with some critical issue in your situation. If you are hired for a managerial post, तो अगर आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपको क्रिटिकली इवेलुएट करना है, या सॉरी उस सिचुएशन को इवेलुएट करना है, एनालाइज करना है और आपने उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है, तो फिर आप उस मैनेजरियल पोस्ट के लिए या इस किस्म की किसी भी डेजिग्नेशन के लिए फिर आप कैपेबल नहीं होते। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि वो कहते हैं कि देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब आपको ये देखना है कि वो बंदा जो जिसको आप इस टेस्ट के थ्रू एनालाइज कर रहे हैं या इवेलुएट कर रहे हैं, उसकी मेंटल कैपेसिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। मतलब ही शुडंट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम सम एनी काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, मेंटल और फिज़िकल, क्योंकि दोनों में स्पेशली न्यूरोलॉजिकल उसके उसमें लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट उसकी परफॉर्मेंस पे जो है फॉर श्योर आएगा। फिर आ जाता है फिफ्थ नंबर पे कैंडिडेट रेफरेंसेस। जब भी आप अपना रेज्यूमे बनाते हैं ना, तो उसके एंड में आपने रेफरेंस कोट करना होता है। यूजुअली 2 ऐसे आपके रेफरेंसेस आप लिखते हैं जो आप, अगर तो आप फर्स्ट टाइम उसमें जा रहे हैं तो आप यूजुअली अपने टीचर्स का देते हैं, बट इफ़ यू हैव बीन एम्प्लॉयड प्रीवियसली तो फिर आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर का या वहाँ पे किसी कलीग का रेफरेंस देते हैं जिनकी पोजीशन, जिनकी आपके बारे में राय जो है बेसिकली वो इम्पॉर्टेंट होती है। उनके थ्रू भी वो आपके मुतालिक जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कितने आप ज़्यादा कैपेबल हैं, आपकी कैसी रेप्यूट रही है आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, किस लेवल पे आप परफॉर्म करते रहे हैं और कैसा परफॉर्म करते रहे हैं। तो उनको अपने उसमें हायरिंग के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर हेल्प आउट करती हैं आपके मुतालिक डिसीजन लेने में। नेक्स्ट आ जाता है जी इन पर्सन इंटरव्यू। इन पर्सन इंटरव्यू ये बेसिकली आपने सुना ही होगा, ये तो हम सबको पता है कि जैसे कोई एक जॉब है और उसके लिए आप जाते हैं तो आपसे इंटरव्यू लिया जाता है फेस टू फेस। अब उसमें कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दे हैव अ सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस, कि इसको आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी कह सकते हैं।
कि उन्होंने बनाए होते हैं क्वेश्चन के ये उन्होंने पूछने हैं और इससे रिलेटेड उन्होंने आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी है कि आप किस किस्म की और किस लेवल की, किस नेचर की इन्फॉर्मेशन आप उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बट समटाइम्स थिंग्स हैपन लाइक कि अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो वो उससे दूसरा, दूसरे से तीसरा, उसके अंदर से चीज़ें जो है ना वो आगे से आगे चलती जाती हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, ये डिपेंड करता है इंटरव्यू लेने वाले पे भी और जो इंटरव्यू दे रहा होता है उस पे भी, कि किस तरह का वो प्रेफर उस वक्त करेंगे, उस किस्म जैसी सिचुएशन होगी उसके मुताबिक भी कई दफ़ा ये चीज़ डिसाइड कर ली जाती है। ओके जी, नेक्स्ट वन इज़ द पर्सनालिटी असेसमेंट। दिस मेथड बेसिकली इन्वॉल्व्स assessing someone's personality by giving them maybe different personality tests, or in some situation they give you a situation or condition to know how will you perform in that specific situation. और कई दफ़ा ऐसे भी हो सकता है कि वो आपसे कोई ओपन एंडेड किस्म का क्वेश्चन कर लें या आपको कोई एक स्टेटमेंट दे दें और उसमें से आपसे पूछें कि आपका इसके मुतालिक क्या व्यू पॉइंट है, ठीक है। अब जैसे अगर हम कहते हैं कि एक सेल्स बॉय जो है उसको किस तरह का होना चाहिए, समवन वुड से कि ही शुड बी फ्रेंडली, ही शुड बी क्वाइट नरेटिव, मतलब हर चीज़ उसको बहुत खोल के बात करने की आदत हो ताकि वो अपने कस्टमर्स के साथ डील करने में ज़्यादा अच्छे तरीके से ओपन हो के बात करे, ठीक है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा रिजर्व इन द सेंस कि थोड़ा सा उसको सोबर सा लगना चाहिए, या ये कह सकते हैं, हो सकता है किसी का व्यू ये भी हो कि बहुत उसको एक लीनियंट होके बात नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज़ जो है ना कस्टमर्स तंग भी करते हैं। सो देयर कुड बी डिफरेंट व्यूज़। अब जो हायर कर है ना उसके मुताबिक क्या उसका आंसर होना चाहिए, दैट डिपेंड्स बेसिकली। यूजुअली तो हम यही कहते हैं कि कस्टमर सर्विस रिलेटेड जो ऑफिशियल्स होते हैं, कोई ऑफिसर्स हैं, कोई सेल बॉय है या कोई भी ऐसा बंदा है जिसने कस्टमर को डील करना है, तो बेसिकली उसको बहुत पेशेंट और टॉलरेंट होना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी एक चीज़ को सेल करना है, आपने कस्टमर की बात को सुनना है, अदरवाइज़ आपका बिज़नेस जो है ना वो स्मूथली रन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से भी उनको डिफरेंट स्टेटमेंट दे के वो ट्रू फॉल्स के सेंस में भी आंसर कर सकते हैं। अगर ओपन सा क्वेश्चन है तो उसमें अपने अपने वो व्यू पॉइंट को भी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से उनकी पर्सनालिटी असेसमेंट जो है वो भी की जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है इसमें जॉब नॉलेज इवैल्यूएशन। सो जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई की है, क्या आप उससे रिलेटेड कोई नॉलेज है, क्या आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस या आपकी क्वालिफ़िकेशन उससे रिलेटेड आप कुछ बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहते हैं कि हम एक अपनी यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट में हायर करना चाहते हैं एक एडमिशन के लिए कोऑर्डिनेटर, ठीक है, मतलब लाइक BS एडमिशन्स हैं तो हमें उसके लिए कोई कोऑर्डिनेटर चाहिए। तो आप उसको जब हायर करते हैं तो उससे आप पूछ सकते हैं कि, या उसको सिचुएशन देख के पूछ सकते हैं, आप उसको जज कर सकते हैं कि कैसे वो उसमें बिहेव करेगा। लाइक कई दफ़ा हमारे पास पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं देख लें आप प्लीज़ कुछ कर दें, ठीक है। तो ये जो देख लें आप प्लीज़ कुछ कर दें, ये हो नहीं सकता होता। हाउ ही वुड बिहेव इन दिस गिवन सिचुएशन, जब उसके पास कोई पेरेंट आए या उनको कहा जाए कि जी पेरेंट आके आपको ये कह रहे हैं, तो फिर आप उनको कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो अगर तो उसका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा तो वो भी उसमें भी वो बता सकता है कि उसको कैसे डील किया जा सकता है, और अगर नहीं है तो भी वो इस चीज़ को बता सकता है कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए इस सिचुएशन को डील करने के लिए। तो ये है कि आप जो रिक्वायर्ड आपकी पोजीशन है, बेसिकली आप जिसके लिए बंदा हायर कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप उसकी नॉलेज को या उसकी पर्सनालिटी को इवेलुएट करते हैं इस तरीके से भी। फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी आ जाती है कि उसको पता होना चाहिए कि एडमिशन का बेसिकली क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। अगर आप उससे पूछा जाए कि किन किन ग्राउंड्स पे हो सकता है या आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं इसमें, तो उसको पता होना चाहिए कि जब एडमिशन का एक एडवर्टीज़मेंट आती है तो उसमें क्राइटेरिया जो है बेसिक वो दिया होता है। यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है, आपके डिपार्टमेंट का क्या क्राइटेरिया है, कहाँ पे आप थोड़ी लीनियंसी कर सकते हैं, कितनी सीट्स आपने रखनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो बेसिक्स हैं उसको उनकी नॉलेज होनी चाहिए, या मेन जो उसमें चीज़ें ऐड हो सकती हैं वो उसको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है जी सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट। अब ये सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट जो है ना बेसिकली, जैसे मैंने आपको अभी बात की थी प्रीवियस उसमें, कि आप उसको एक सिचुएशन दे के भी बात पूछ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि पेरेंट अगर आपके पास आते हैं और आप वो कहते हैं कि ये मेरिट पे तो नहीं आ रहा, आप इसका कोई और सोल्यूशन बता दें कि क्या हो सकता है,
या कुछ कर दें, तो फिर आप उनको ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करेंगे? ठीक है, एक तो बहुत बेहतरीन चीज़ ये है कि आप उनसे कह दें कि आपका यहाँ पे तो नहीं हो सकता एज़ पर द प्रीवियस मेरिट, ठीक है, जो आपकी लिस्ट लग गई है या जो लगने जा रही है उसके मुताबिक, या और साथ में आप उसका रिज़ल्ट भी देख लेते हैं कि कितना डाउन इसमें आ सकता है, ठीक है ना। 1-1% पे 5-5, 10-10 बच्चे इससे ज़्यादा भी होते हैं, कई दफ़ा पॉइंट्स में भी डिफरेंसेस आ रहे होते हैं। तो ये जो उस सिचुएशन में आप डिसीजन लेते हैं कि आपके पास सराउंडिंग में कोई नहीं है, आपने उस सिचुएशन को विदाउट एनी असिस्टेंस कैसे डील करना है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट दे जाता है एम्प्लॉयर को। जब उसको ये पता चल जाए कि उसका बिहेवियरली वो कैसे परफॉर्म करेगा, उसमें उसको कैसे डील करेगा, कॉग्निटिव स्किल्स तो उसके आ ही रहे हैं, उसके डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी आ रहे हैं, लेकिन वो बात कैसे कर रहा है, उसकी टोन कैसी है वगैरह वगैरह, और कितने सॉल्यूशंस वो उनको दे रहा है या क्या उनको बता रहा है कि क्या बेस्ट पॉसिबल वेज और क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। लाइक कि अगर वो अपना टाइम वेट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये चांसेस जो है ना इतने परसेंट है बस इसमें। तो इट्स व्हाट इज़ मोर बेटर कि इफ़ यू हैव अप्लाइड इन सम अदर डिपार्टमेंट ऑल्सो, और उसमें अगर आपका मेरिट बन रहा है तो आप उसमें ज़रूर अपनी फ़ी पे करें। लेटर ऑन अगर इसमें आपका मेरिट आ गया तो फिर आप इसमें ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं, ठीक है। या फिर ये है कि अगर वहाँ पे सेल्फ सपोर्ट का है तो क्या आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप सेल्फ सपोर्ट में शिफ्ट करवा लीजिएगा, ठीक है। तो देयर कुड बी सम डिफरेंट इसके वेज़ हो सकते हैं जो आप उस सिचुएशन में उन पेरेंट्स को बता सकते हैं। तो जो आपका बिहेवियर है, जो आपकी टोन है, आप कैसे उनको डील करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है, ये सारा कुछ बेसिकली जो है ना सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट के अंदर फॉल कर सकता है, और एम्प्लॉयर के लिए बहुत बेनिफिशियल ये होता है। फिर उसके बाद आ जाता है नंबर 10 पे बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। तो बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में जैसे हमने पहले बात की थी कि फॉर्म पे सारी डिटेल्स दी होती हैं। तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके पर्सनल आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, इंटरेस्ट आपके क्या हैं, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, मतलब आप कहाँ कहाँ जॉब कर चुके हैं वगैरह वगैरह। अब देखिए लाइक अगर हम बात करते हैं कि हमने अपने डिपार्टमेंट में एक हायरिंग करनी है किसी बंदे की, कि एक टीचर की, तो अगर वहाँ पे एक तो आता है साइकोलॉजी के साथ, ठीक है, पीएचडी इन साइकोलॉजी, एक आ जाते हैं जी क्लिनिकल साइकोलॉजी में। सो इफ़ यू हैव अ वीएन फॉर स्टार्टिंग बीएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एज वी हैव स्टार्टेड एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, एंड फॉर दैट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीचर्स आर अवेलेबल इन आर डिपार्टमेंट। बट अगर इसके साथ हमें और चाहिए और हम बीएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर हम प्रेफर कर सकते हैं वहाँ पे कि भाई हमारे पास दूसरे तो नंबर ऑफ़ टीचर्स जो हैं वो इनफ हैं, जितने साइकोलॉजी में रिक्वायर्ड है, जितने हेल्थ में रिक्वायर्ड है। अब हमने अगर बीएस क्लिनिकल में करना है तो हमें 2-3 और चाहिए। तो वहाँ पे प्रेफरेबल ये है कि अगर वो किसी के पास क्लिनिकल डिप्लोमा है या किसी का एमएस क्लिनिकल में है या कोई प्रैक्टिस करता रहा है ऐसे सिनेरियो में, तो हम उनको हायरिंग उनकी कर लें कि वो एक अच्छा इजाफा साबित हो सकते हैं हमारे उसमें। या एज अ कोई प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट काम करता रहा है, तो हमारा अगर हम यहाँ पे काउंसलिंग सेंटर स्टार्ट करना चाहें अपने डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे वो बच्चों को बहुत अच्छी जो है ट्रेन कर सकते हैं। तो ऐसी जो एक स्पेशल किस्म की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं या आपकी क्वालिफ़िकेशंस में वो ऐड हो रही होती हैं, तो वो चीज़ें जो हैं या वो एस्पेक्ट्स जो हैं आपके रेज़्यूमे से और आपकी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन से, वो भी एम्प्लॉयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आ जाता है जी 11 नंबर पे ग्रुप इंटरव्यू प्रोसेस। ग्रुप इंटरव्यू प्रोसेस में बेसिकली ये होता है कि एक ग्रुप में कैंडिडेट्स को क्वेश्चंस डिफरेंट किए जाते हैं या उनको कोई छोटा सा टास्क दिया जाता है। बेसिकली ये देखा जाता है कि कितना एफिशिएंटली वो एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं या कितना एफिशिएंटली वो एज अ टीम काम कर रहे हैं उस पर, ठीक है। इससे रिलेटेड आप उनसे एक दूसरे के मुतालिक राय भी ले सकते हैं। सो यू मे कम टू नो और कंक्लूड आप इससे ये कर सकते हैं कि कौन से लोग इनमें से ऐसे हैं जो टीम वर्क के लिए तो परफेक्ट हैं और कौन से ऐसे हैं जो टीम के साथ नहीं चल सकते, ठीक है। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेशक लाइक हम अपनी अपनी यहाँ पे डिपार्टमेंट में क्लास पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें यही है कि कहीं ना कहीं वी नीड समवन एल्स अराउंड अस।
कई दफ़ा हमें क्लास को स्वैप करना पड़ता है, कई दफ़ा हमें कोई ड्यूटी स्वैप करनी पड़ती है। तो बेसिकली एज अ टीम हम इसमें डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग जो हैं अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ एज अ टीम भी काम कर रहे होते हैं। अगर मैं आप मुझे कह दूँ कि जी मैंने कोई ड्यूटी एक्सचेंज नहीं करनी, मैं किसी की जगह पे कोई ड्यूटी नहीं कर सकती, किसी को भी मैं किसी भी किस्म की जो फेवर है या हेल्प है वो नहीं कर सकती, तो इट मीन्स आई एम नॉट फिट फॉर आई एम नॉट फिट फॉर टीम वर्क बेसिकली। ठीक है, ना मैं तो उसको लीड कर सकती हूँ, ना ही मैं किसी के अंडर काम करने की फिर काबिल हूँ। क्योंकि जब मैंने किसी की बात ही नहीं सुननी, जब मैंने मतलब इसमें स्ट्रेट अवे कह देना है कि जी मैं किसी के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकती या किसी को ये थोड़ी सी फेवर नहीं दे सकती, तो फिर इसका मतलब है कि किसी के साथ में उस तरह से काम करने की मेरे में अंदर एबिलिटीज़ जो हैं वो नहीं है। तो ये जो ग्रुप इंटरव्यू प्रोसेस होता है ना, बेसिकली यहाँ से ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती हैं। फिर ये भी पता चल जाता है कि कौन बैक बाइटिंग कर सकता है। लाइक अगर आप किसी से क्वेश्चन करते हैं कि उसने कितना परफॉर्म किया, ठीक है, तो अगर तो कोई नेगेटिव रिमार्क्स एक दूसरे के मुतालिक दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन फ्यूचर भी वो लेग पुलिंग हो सकती है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर आप एक दूसरे को फेवर दे के उसमें काम कर रहे थे कि अच्छा ये आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो चलें ये मैं कर लेती हूँ, आप ये वाला काम कर लें, तो ये है बेसिकली जॉइंट वर्क, एक टीम वर्क जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसी चीज़ें भी जो हैं वो इवेलुएट की जाती हैं। फिर आगे आ जाते हैं इंटर्नशिप्स आ जाती हैं, जिसमें किसी भी एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयर्स जो हैं आपके, वो हायर करने फुल टाइम या पार्ट टाइम हायर करने से पहले ना आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए उस सिचुएशन से गुजारते हैं, उसमें काम करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, जस्ट टू बी अवेयर ऑफ इफ़ यू आर कैपेबल ऑफ फॉर दिस पोस्ट और नॉट। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग से आप कह लें या उस सिचुएशन में जब आप काम करते हैं, उस रूटीन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, तो आर यू फिट फॉर दैट जॉब और नॉट, ये चीज़ यहाँ से फिर पता चल जाती है। और आपको भी एक, आप पढ़ के आते हैं थ्योरेटिकल बैकग्राउंड से, पढ़ते पढ़ते एकेडमिक लेवल से जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं, तो कौन से ऐसे डिफरेंट चैलेंजेस हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ता है, या जहाँ पे आप प्रीवियसली काम कर रहे थे और अब आप जहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, उसमें दोनों जगहों पे, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के एटमॉस्फेयर पे, कल्चर पे कितना डिफरेंस है, क्या आप उसके साथ खुद को अलाइन कर पा रहे हैं, एडजस्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये टाइम पीरियड जो होता है बेसिकली, इससे ये चीज़ जो है वो समझ में आ जाती है या पता चलती है। नेक्स्ट है जी इंटेग्रिटी असेसमेंट। इंटेग्रिटी असेसमेंट बेसिकली जो है ना, इसमें लोगों के वैल्यू सिस्टम्स को और उनके एथिकल स्टैंडर्ड्स को जो है वो जाना चाहता है। ये हर जगह नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी जगह हो सकती हैं जहाँ पे इस मेथड को इन्वॉल्व किया जाए। ठीक है, बेसिकली ये इसलिए किया जाता है ताकि आपको पता चले कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या आप उसके दायरे इख्तियार में रहते हुए ही अपना काम करेंगे, या फिर आप उससे दाएं बाएं होके भी काम कर सकते हैं। तो ये यहाँ से फिर आपका स्टार्ट में ही पता चल जाता है कि बंदा किस कदर अपने वैल्यू सिस्टम पे बिलीव करता है, या सिस्टम के अंदर रह के काम करेगा, या उससे दाएं बाएं होके भी बाहर निकल के भी काम कर सकता है। तो वो फिर जो अनएथिकल काम है वो बेशक बेनिफिट में जा रहा हो, लेकिन एक इलीगल वे में अगर आप कर रहे हैं उसको, तो वो गलत कंसीडर होता है। उसके बाद आ जाता है जी 14th नंबर पे वर्क सिमुलेशन। ओके, इसमें बेसिकली कैंडिडेट्स को एक डे टू डे बेसिस पे जो भी उनकी रूटीन होती है उससे रिलेटेड कोई एक वर्क असाइनमेंट दी जाती है। ठीक है, जैसे उनको कह दिया जाए कि आपने एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है। ठीक है, आप समझेंगे आपके 5 मिनट्स में या हाफ आवर में बेसिकली आपकी एक मीटिंग है, तो उसके लिए ना आपने जो आपके ये डाटा है, कोई भी मटेरियल देके इस पे आप एक जो है प्रेजेंटेशन उसको प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो एक इंस्टेंट किस्म का कोई काम या एक्टिविटी दी जाती है ताकि उनकी क्वालिटीज़ को जज किया जाए कि अगर कोई सडन काम आ जाते हैं, यूजुअली इट हैपन्स इन ऑर्गेनाइजेशंस, कि आप अपनी रूटीन में चल रहे हैं, अचानक कोई मीटिंग आ गई है, तो फिर आपने उसको के लिए ख़ुद को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगर अचानक आपको कोई काम दे दिया जाता है या अथॉरिटीज़ आपको कह देती हैं कि आपने ये काम करना है, तो फिर आप उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना, ये बेसिकली उनके जो वर्किंग एनवायरनमेंट में उनकी एबिलिटीज़ हैं उसको जज करने के लिए इस किस्म की सिमुलेटेड किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो दी जाती हैं।
फिर 15th नंबर पे आ जाता है जी फ़िज़िकल असेसमेंट। तो फ़िज़िकल असेसमेंट भी ज़रूरी होती है हर किस्म की, जैसे जॉब है उसके लिए आप कितने फ़िज़िकली फ़िट हैं, या आप वो उस जॉब से रिलेटेड वो टास्क जो उसके लिए ज़रूरी हैं, क्या आप वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कंस्ट्रक्शन स्टाफ है, तो उसने तो बिल्डिंग में ऊपर भी चढ़ना है, और अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है और आप उसको नहीं कंट्रोल कर पाते, इसका मतलब है आप उसके लिए फ़िट नहीं हैं। जैसे फायर फाइटर्स हैं, इन्होंने जंप्स भी लगाने हैं, खिड़की से भी कूदना है, बाहर से अपने वो जो उनके रोप्स हैं या ट्रक्स होते हैं बड़े, उनकी लैडर्स होती हैं, उनके थ्रू उन्होंने ऊपर भी पहुंचना होता है, बिल्डिंग के ऊपर वाले पोर्शंस में या फ्लोर्स पे। तो क्या वो उस चीज़ के लिए कैपेबल हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं फ़िज़िकल असेसमेंट में आ जाती हैं, या उनसे इस किस्म की ट्रेनिंग से उनको गुजारा जाता है पहले, ताकि पता चल जाए। अगर तो वो फ़िट नहीं होते उसके लिए, और अगर उनकी फ़िज़िकल हेल्थ उनको अलाउ नहीं करती इस किस्म के काम के लिए, तो वहीं पे वो जो है ना उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और आगे तक वही आता है जो उसको कर सकता है। फिर आगे आ जाता है 16 पॉइंट पे, बैकग्राउंड चेक। बैकग्राउंड चेक्स जो हैं बेसिकली वो इसलिए किए जाते हैं ताकि आपका पूरा जो प्रीवियस हिस्ट्री रह चुकी है, आपका एम्प्लॉयर उससे अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल कई दफ़ा पुलिस रिपोर्ट भी मांगी जाती है कि आपका करैक्टर जो है वो ठीक है, वो तो पुलिस स्टेशन से आपको वो उसको लेना होता है। आपकी प्रीवियस कंपनीज़ जो हैं वहाँ से इस चीज़ का पता किया जाता है कि आपका कैसा बिहेवियर कैसा था। वेरी सिंपली सेइंग, अगर हम इसको बिल्कुल ही जनरल लेवल पे या सिंपलेस्ट इसके फॉर्म देखें, तो ये जब हम स्कूल से पास आउट होते हैं तो कॉलेज में एडमिशन के लिए हमें करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसी तरह से जब हम कॉलेज से यूनिवर्सिटी आते हैं तब भी हमें करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो हाँ, जो हमारी प्रीवियस इंस्टीट्यूट जो है वो हमें इशू करती है। तो अगर बहुत सिंपलेस्ट इसको लेवल पे देखें तो इट्स काइंड ऑफ दैट थिंग, ठीक है। और फिर जब ऐसे ही इसको आप ज़रा अपर लेवल की तरफ लेके आते हैं, जब हम जॉब सिनेरियो की बेसिकली बात कर रहे हैं, तो इससे पता ये चल जाता है बेसिकली इन इवैल्यूएशन से आप कह लें, या आपके बैकग्राउंड को ट्रैक करने से, कि जो चीज़ें आपने रेज़्यूमे में अपने लिखी हैं वो वेरीफाई हो जाती हैं, क्या वो ठीक भी हैं या नहीं है। लाइक अगर मैं लिख दूँ जी मैं कनेक्ट कॉलेज में पहले काम करती रही हूँ, तो फिर एलसी वाले वहाँ से भी एक वो चेक बैलेंस उसका मतलब उसको चेक कर लें कि क्या मैं वाकई उनकी एम्प्लॉय रही हूँ या नहीं रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिकली कि आपका रेज्यूमे या आपने जो फॉर्म एक फ़िल किया होता है वो भी वेरीफाई हो जाता है, इसलिए ये ज़रूरी होता है। द लास्ट वन इज़ द इंटरनल प्रोसेसेस एंड रेफरल्स। तो इंटरनल प्रोसेसेस एंड रेफरल्स बेसिकली जो है ये इन्वॉल्व करते हैं रिव्यूइंग कैंडिडेट्स दैट आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लाइक अगर आपने जैसे पोस्ट आती है ना न्यूज़पेपर में, वो आती है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर्स या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर्स की पोस्ट आती हैं। अब होता बेसिकली क्या है कि बाहर से तो लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपके अंदर के लोग भी उस पर अप्लाई करते हैं हु आर एलिजिबल फॉर दैट स्पेसिफिक पोस्ट। तो उसमें जो कंपनी होती है उसके लिए ये ज़्यादा एक एडवांटेज होता है, और उसके लिए कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑलरेडी उनके एम्प्लॉयज़ हैं और अप्लाई किया उन्होंने, उनके सारे रिकॉर्ड को, प्रीवियस रिकॉर्ड को अच्छे तरीके से चेक कर लें एक दफ़ा दोबारा, ताकि कितना बेनिफिट मिला है उनको आज तक उस एम्प्लॉय से, और उसको ही नई पोस्ट पे हायर करने जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। एक तो ऑलरेडी वो आपका एम्प्लॉय है, दूसरे वो इस कल्चर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होता है, तीसरे आप उससे वाकिफ़ होते हैं, आपको पता है वो कितनी उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, कितना वो आपके लिए ऑलरेडी बहुत अच्छी जॉब परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। आपके कल्चर के साथ उसकी जो वैल्यू सिस्टम है वो बिल्कुल अलाइंड है। फिर ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में जा रही होती हैं, ठीक है। तो कंपनीज़ जो है एक हायर लेवल पे अपॉइंट करने के लिए एक बाहर से बंदे को बेहतर समझती हैं यूजुअली, कि एक नया बंदा जो है, सॉरी, उस पोस्ट पे एक अपना ही बंदा जो है उसको प्रमोट कर दिया जाए। एक तो उसके इट्स बेसिकली आप कह लें कि एक्नॉलेजमेंट भी है कि उसने इतनी स्ट्रगल की थी, नंबर ऑफ़ ईयर्स ही हैज़ गिवन टू योर इंस्टीट्यूट। तो आप उसका एक एक्नॉलेजमेंट भी है कि नाउ ही इज़ एलिजिबल फॉर दैट, क्राइटेरिया भी मीट कर रहा है, तो आप उसको एक्नॉलेज करते हैं और आप उसको प्रमोट करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उस पे काम करेगा,
ठीक है। समटाइम्स इट हैपन्स, जब आप उसको निगेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को और बाहर से किसी को हायर करते हैं, तो बाहर से आने वाला ना फिर अपने आप को कुछ समझ के बैठता है कि यहाँ पे के जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं, वो उनकी कोई वर्थ नहीं है। अगर उनकी वर्थ होती तो वो इस लेवल पे वही प्रमोट होते। मैं ही बहुत वर्दी हूँ, मेरे में ज़्यादा कैपेसिटीज़ एबिलिटीज़ हैं, मेरी वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए अपने एम्प्लॉयज़ को छोड़ के इस इंस्टीट्यूशन ने मुझे हायर किया है। सो देयर कुड ऑल्सो बी सम बिहेवियरल इश्यूज़ जो आपके करंट कल्चरल एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑलवेज अ प्रेफर्ड सिचुएशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन to hire or promote their own employees for the next level. These were the different ways through which one employer can hire their employees. इसमें से ज़रूरी नहीं है कि ये 17 के 17 उस प्रोसीजर में इन्वॉल्व होते हैं, कहीं पे 2 होते हैं, कहीं पे 4 होते हैं, कहीं पे 6 होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द इट डिपेंड्स ऑन द पोस्ट फॉर विच वन इज़ गोइंग टू हायर समवन। ठीक है, तो उस पर बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी आपकी ये जो है डिमांडिंग है आपकी पोस्ट, जिसके लिए आपने किसी को हायर करना है, उसके मुताबिक डिफरेंट इसमें से फिर चूज़ कर लिए जाते हैं वेज, और उनके थ्रू जो है ना उन प्रोसीजर्स के से उनको एम्प्लॉयज़ को या कैंडिडेट्स को गुजारा जाता है, और फिर फाइनल उस पर आके सारी स्कोरिंग को करके उसका तो फिर एक बंदे को उस पर हायर किया जाता है पोस्ट पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।